This is also a special occasion because we are going to release 2 community magazines today. And this is not easy to release a magazine. We had actually worked on them for a long time. And actually the original plan was to release them in the month of May. But you know that this nefarious terrorist attack by Pakistan based groups and Pakistan sponsored terrorists, they came in Pahalgam and this mayhem was there, and we were also deeply affected and also a bit diverted, so we could not do it in May, but we continued to work on this magazine, and finally we decided that we would issue the magazine on Diwali. So I'm very grateful to publishers who have done their bit. The Global, Mr. Mrityunjay Mishra, who is the editor, he is there. He would also be speaking, and then the directory and the publisher, Mr. Hans Hermansen, who is right now in India. He could not be here. He's going with a group of journalists around India with a group brought together by Ministry of External Affairs. So we ensured that this magazine of the Global this time would only be on India. So it would give you a glimpse of, I think you would get copies, it would give you a glimpse of what India is doing in Denmark. It would be very fine. And then also Mr. Harvani, he brings out regularly the directory of Indians in Denmark, and Mr. Harvani belongs to that generation when he came to Denmark when there were very few Indians. And now there are 22,000 plus Indians living in Denmark. So I asked Mr. Harvani that why do we need to bring a directory of Indians in Denmark? So he said that no, there are some other important things which should go into directory like information, and we agree with that. We have given some information related to consular services of Embassy of India. So people do get they do need information about passport, visa, some attestation. So some kind of information is there. But of course, for other things, Embassy is always available, and we talk about that. So we'll release that also. Now I will request Ambassador Sir, Ma'am, Mr. Harvani, Mrs. Harvani, House of Political and Commercial, and Ashish Arya Sir, to come forward for the release of 11th revised edition of Indians in Denmark by Mr. Harvani. Okay. 1, 2, 3. So we'll all get a copy. Yes. Request Mr. Harvani to share his thoughts about releasing this magazine. Namaskar, good evening, and welcome. I have prepared this speech in English, but as everybody is Indian here, so I would like to talk in Hindi. If you are so, it's not prepared speech now. Right. मैं डायरेक्टर के बारे में बताऊंगा कि एक तूफानी रात थी। हम मिस्टर मोहन सिंह बैस था जब जिसका रेस्टोरेंट था यहाँ पर, उसके साथ कुछ इंडियन के घर में गए थे न्यू ईयर के मनाने के लिए। तो वहाँ पर कुछ 20 हिंदुस्तानी बैठे थे और बातें कर रहे थे कि हमारे पास एम्बेसी से कोई लेटर नहीं आता। तो उनको मैंने कहा भाई लेटर क्यों आएगा जब आपका एड्रेस उनके पास नहीं है? तो उन्होंने कहा कैसे करें? तो उसको मुझे आइडिया आया, आज से 35-40 पता नहीं कितने साल हो गए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं एक किताब बनाऊँ। उस टाइम 200 इंजन थे खाली, तो डेटाबेस, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ या अभी यू कैन से इंजीनियर, तो मैंने डेटाबेस बनाया एक छोटा सा जिसमें 200 इंजन थे और वो मैंने एम्बेसी को प्रेजेंट किया। ये जन्म हुआ बात इंडियन डायरेक्टरी ऑफ इंडियंस इन डेनमार्क का। उसके बाद जैसे जैसे ग्रो होते गए तो हमने सोचा कि इसमें कुछ और भी चीज़ें डालें। पहले एडिशन में खाली हिंदुस्तानी के नाम पते थे और कुछ नहीं था। तो बाद मैंने सोचा कि जब जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर हिंदुस्तानियों की, उसको क्यों नहीं कंपाइल किया जाए। वो भी हो गया। इस तरह से अभी एडिशन का 11 एडिशन, नंबर 11 एडिशन है ये। इसमें आप देखेंगे तो आपको पुरानी यादें, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर के वाजपेयी साहब से लेकर जो यहाँ आए थे हिंदुस्तान से डेनमार्क में, उनकी यादें हैं, उनकी फ़ोटोज़ हैं। उसके बाद में यहाँ जो डेलीगेशन जाता है, ट्रेड डेलीगेशन हिंदुस्तान में, उसकी इंफॉर्मेशन है।
और इंडिया डेनमार्क के बीच जो भी रिलेशन है उसकी इंफॉर्मेशन है। मैं बताता हूँ, एक नावल लिखने में मैं 2 घंटे में नावल लिख सकता हूँ, 2 घंटे में, लेकिन इसको लिखने के लिए, इसको बनाने के लिए मुझे 1 साल लगा, क्योंकि इसमें डाटा कंपाइल करने के लिए यू हैव टू लुक फॉर इट, यू हैव टू सर्च एवरी डे न्यू डाटा कम्स, टू मेक इट अपडेट, यू हैव टू वर्क हार्ड। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सुबह 4 बजे काम पे जाता हूँ, सुबह 4 बजे 35 अखबार रोज पढ़ता हूँ, और करीब दुनिया भर के चैनल को मैं यानी स्क्रॉल करता हूँ, सब देखता हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव एनी वन मीडिया, बिकॉज आई बिलीव व्हाट दे से एंड देन आई ट्राई टू सी वो क्या कहना चाहते हैं, लाइक दैट। तो मैं भारतीय दूतावास का, श्री मनीष प्रभात जी का और एम्बेसी स्टाफ का, कल खास करके अशोक पार्वत जो यहाँ पर है, जो कि कमर्शियल सेक्शन से है, उन्होंने बहुत मदद की कुछ कंपाइल करने के अंदर कि भाई कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जो आपकी पारुल जैन है यहाँ पर, उन्होंने भी बहुत मदद की। हालांकि फोटोग्राफ्स मेरे थे, लेकिन फोटोग्राफ्स को डिटेल्स चाहिए थे, उसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, वो हमने किया। अब मैं आपको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। मैं जो ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने डायरेक्टरी बनाई तो उस टाइम मेरे ध्यान में आया, अच्छा उसका क्या होगा, तो मेरा टीवी चैनल भी था यहाँ पर, और ये करीब 15 साल 17 साल में टीवी चैनल चलाया। दुनिया का पहला टीवी स्टेशन टेरेस्टेरियर डेनमार्क में मैंने चलाया। तो एक दिन मेरे बच्चे का फोन आया, किसी बच्चे का, कोई 5 साल का बच्चा था। उसने कहा, अंकल मेरे पापा ने आपके टीवी में एक गाना गाया था, वो मुझे देखना है। अब मैं कैसे क्या करूँ, मेरे पास यूमेटिक कैसेट थी। तो उस टाइम पे मैंने फिर सोचा कि चलो उसको क्यों नहीं यूट्यूब चैनल बना लिया जाए। तो उस बच्चे के 5 साल के इंस्पिरेशन से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, इंडिया विजन, जो कि अभी बहुत फेमस है। इसके अभी बताता हूँ, व्यूअर्स जो हैं $750,000 व्यूज, 4.94K सब्सक्राइबर्स, और ये 2013 में स्टेब्लिश किया था मैंने। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये जो लोगो गवर्नमेंट अपने यूज करती है अभी, ये मैंने डिजाइन किया था। आज से करीब 45-50 साल पहले कंप्यूटर पे बैठ के एक कंप्यूटर ग्राफिक्स से मैंने बात की। हमने इसको बनाने में एक महीना लगाया, रोज 4 घंटे काम करते थे। अल्टीमेटली ये लोगो बना, और उसके बाद मुझे खुशी है कि इसी लोगों को एक साउथ में टीवी चैनल है, मलायो टीवी चैनल, उन्होंने कॉपी किया, उन्होंने यूज़ किया और सेम नाम यूज़ किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी यूज़ किया इस लोगों को सब चीज़ों के अंदर। जब ये लोगो बना तो मैंने इसको टीवी में यूज़ किया। उस टाइम में पाकिस्तानी लोग मेरे पास आए, बोले कि सर आपने कश्मीर को इसमें क्यों दिखाया, सीधी सच्ची बात है ये। तो मैंने कहा भाई देखो, मैंने जो किया है किया, आपको जो कुछ करना है कर लो। और आपको खुशी होगी जान के कि मेरे व्यूअर्स सब पाकिस्तानी थे। रास्ते में जाते थे तो बच्चे मिलते थे, कहते थे अंकल अंकल कल आप क्या दिखाएंगे टीवी के अंदर। ऐसा पॉपुलर था, क्योंकि इंडियन कम्युनिटी तो छोटी सी थी उस टाइम पे कोई मेरे ख्याल से 4 या 5 हज़ार लोग थे, लेकिन पाकिस्तान उस टाइम में 70,000। और मेरा टीवी चैनल जो था उस टाइम पे करीब 5 लाख या 6 लाख लोग देखते थे। सिर्फ हिंदुस्तानी सिर्फ 400 लोग थे, सॉरी 4,000 लोग थे उस टाइम पे, और 5 लाख लोग देखे टीवी को। कौन थे इसमें? इजिप्शियन, ईरानी, इराकी, क्योंकि हिंदुस्तानी म्यूजिक सबको पसंद आता था। ठीक है, ये रही टीवी की बात। आपके लिए लोगो है, इसके पीछे एक QR कोड बनाया मैंने, इसको मैं रख दूंगा, जिसको भी चाहिए। जो भी मेरे चैनल्स हैं आपको डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, डायरेक्टरी जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी है,
जी मैं रख देता हूँ यहाँ पर, कोई भी इसको QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल पे इसको सेव कर सकता है। और याद रखिए, ये वर्षन आपको अपडेट वर्षन मिलेगा। मैं सुबह 4 बजे उठ के वो बता नहीं 35 अखबार पढ़ता हूँ रोज। उसमें हिंदुस्तान के बारे में जो भी दुनिया के अखबार है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, वाशिंगटन पोस्ट है, गार्जियन है, फाइनेंशियल टाइम्स है, सब अखबारों के जो कटिंग्स होते हैं जो हिंदुस्तान के बारे में लिखते हैं वो इसमें डालता हूँ सुबह को। और हिंदुस्तान में जो डेनमार्क के बारे में लिखते हैं वो भी उसमें कटिंग्स आपको उसी दिन मिलेगी, विद इन 1 आवर यू कैन सी ऑन द वेबसाइट। इसके अलावा इसमें मैंने देखा कि हिंदुस्तानी यहाँ पर जो कहते हैं आपस में किसी को कैसे बुलाएं, कैसे किसी को बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसमें वेबसाइट पे एक फैसिलिटी है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है चाहे तो उस पर अपना कमिंग प्रोग्राम कमिंग इवेंट डाल सकता है, उसको हम एडिट करते हैं, देखते हैं सही बात है गलत है, तो गलत भी आ सकते हैं ना, क्योंकि इसमें डेटाबेस में कुछ लोग हिंदुस्तान से भी रजिस्टर करते हैं जो कि मैं बाद में निकाल देता हूँ, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर पीपल लिविंग इन डेनमार्क, तो उनको निकाल देता हूँ तो मैं। तो उसमें आपको जो एक्टिविटीज़ होती है वो भी आप डाल सकते हैं, तो अपडेट इसको देख सकते हैं। हालांकि एम्बेसी का पेज भी अभी है, जो फेसबुक है, पता नहीं कितने है जहाँ। हालांकि मैं टेक्नोलॉजी बिलीव नहीं करता, आई एम इंजीनियर माई सेल्फ, लेकिन आई डोंट बिलीव इन AI। आई यूज AI इन माई TV प्रोग्राम्स बट आई डोंट ट्रस्ट इट। एक चीज़ को बनाने के अंदर मुझे उसको करेक्शन करने के लिए 20 दफा कर देखना पड़ता है। सही। अच्छा, अब आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा मेरी वेबसाइट का। ये हमारा मेन पेज खुलता है जो इंडिया वर्जन का। अभी इसमें आप जाइए इंडियंस इन डेनमार्क, तो यहाँ पर आपको मिलता है ऑप्शन रजिस्टर योरसेल्फ। तो इसमें आपका ऑप्शन होता है आप अपना नाम पता रजिस्टर कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर जो भी डाटा है वो ऑथेंटिक है, लोगों ने खुद रजिस्टर किए हुए हैं। इसके अलावा एक फॉर्म भी है जो लोगों ने रजिस्टर करके मुझे भेजे हैं, तो इसमें जो डाटा ऑथेंटिक है। हाँ, अगर पुरानी हो जाती है, अगर कोई रिन्यू नहीं कराता तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब आइए इवेंट्स पे जाइए, तो इसमें देखेंगे तो उसको स्क्रॉल करो, कहीं पर भी देखा कोई इवेंट दिखा। इवेंट्स फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया ने देखा। जैसे ये इवेंट था 2019 का, ये आपको उसकी डिटेल्स मिलेंगे। यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा वीडियो मिलेंगे जो कि ऑथेंटिक वीडियो है और मेरा खुद को मिला है। तो इसके आगे वो कुछ नहीं करना चाहता। अगर आपको कुछ सवाल पूछना है तो मैं आ जाऊँ। Thanks for watching India Vision. Give us a thumbs up and please subscribe to our channel. All comments are welcome. Hope to see you soon.